In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Today we will start class 10th, subject Mathematics Science Group. Part number 2, unit number 11, concept and solution of MCQs. So chords and all. So first of all, subscribe my channel, like videos, share videos and click on bell icon so that you have to get updates about my new videos. Unit number 11, class 10th, chords and arcs. Let's see. 6 MCQ. If an arc of a circle subtends a central angle of 60 degree, then the corresponding chord of the arc will make the central angle of 60 degree. ये मैंने आपको पार्ट 1 यूनिट नंबर 11 MCQs में भी मैंने समझाया था. MCQ नंबर 1 फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ड्रा अ सर्कल विद सूटेबल रेडियस like this. So you have to draw a circle with suitable radius. That is the circle. Now that is the central point O. So you have to draw its radius like this. Now you have to construct an angle of 60 degree at point O with the help of protractor. That is the angle of 60 degree. 50 and 60. From green color you have to see the angle. So आप सिर्फ इसको सर्कल तक ज्वाइन करेंगे. बाहर भी आप इसको लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक हो गया. दैट इज़ द एंगल ऑफ 60 डिग्री. नाउ चेक दैट. Now you have to take its chord, that is A and B. AB is an arc portion. Now you have to join A and B points. That will be the chord. Now in green color I have drawn the chord. So check that. The arc AB, its central angle is 60 degree. The angle will become at center point, that is known as central angle. And the angle of chord, its corresponding chord AB, in green color, its angle also equals to 60 degree. So अब आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी. MCQ number 6. So let's see. If an arc of a circle subtends a central angle of 60 degree, then the corresponding chord of the arc will make the central angle of 60 degree. That is the correct answer. That is AB in green color, that is the corresponding chord. So its opposite angle is 60 degree. Now let's see its 7th MCQ is, the semi-circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of, let's see its solution. So for example you have to draw a circle. सर्कल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, इससे वीडियो फिर लार्ज हो जाती है. सो आई हैव ड्रॉन अ सर्कल. नाउ यू हैव टू जॉइन. check that is the circle and that is the O is the center point. Now you have to first of all, let's see, semi circumference, that is the boundary or circumference. So that is known as a circle. So semi means half. So you have to draw a line which passes through the center point of the circle, that is known as a diameter. Diameter just passes through the center of the circle. And chord you can draw here anywhere, but not passes through the center of the circle. But diameter must be passes through the center of the circle. So this diameter divides the given circle into two equal parts. So that portion is, you have to name it as AB. AB is the diameter which passes through the center of the circle. So I will shade, that is the semi. Semi means half of the circle. So I have put dot here for identification of semi circumference. Now AB, that is the semi circumference. Let's see, that is protractor. Protractor is also the example of semicircle. So let's see, at protractor एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये देखिए, ठीक है, सेमी सर्कल एंगल इक्वल्स टू 180. आप इस पर रखें तो देखें ये डायमीटर की जो लाइन है ये 180 डिग्री एंगल बनाती है. सो इट्स सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. यू कैन राइट हियर सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज़ द सेंट्रल एंगल. नाउ
सो इसको फिर से देख लेते हैं. द सेमी सर्कमफेरेंस, दीज आर द की वर्ड, सेमी सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल, बोथ होता है दोनों के, यानी डायामीटर के सेमी सर्कमफेरेंस सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स सी एट्थ एमसीक्यू. एट्थ एमसीक्यू सेवन्थ की हेल्प से ही एक्सप्लेन करूंगी. द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज. सो लेट्स सी. For example, that is the circle. So AB is the diameter. So I will write here diameter AB. Now from O point to B, that portion is known as a radius. That is the first radius. Now from O to A, from center to circumference, that is known as a radius number 2. How many radius in this one diameter? 2 radius. So it means diameter equals to डबल ऑफ रेडियस और रेडियल सेगमेंट. ठीक हो गया. ये रेडियस क्या है? ये रेडियल सेगमेंट है. क्लियर हो गया. सो एट्थ एमसीक्यू को हम फिर इससे एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट. लाइक दिस, डायमीटर इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस और रेडियल सेगमेंट. सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ninth MCQ. Now, ninth MCQ is if a chord of a circle subtends a central angle of 60 degree, then the length of the chord and the radial segment are dash. जी MCQ नंबर 9 को मैं एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ MCQs नंबर 6 डायग्राम. ठीक है. MCQ नंबर 6 की जो डायग्राम है इसकी हेल्प से मैं MCQ नंबर 9 एक्सप्लेन करूँगी. आपको पता है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक हो गया. देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट. यहाँ पे देखिए ये रेडियल सेगमेंट है ओ बी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एमसीक्यू में वो 4 सेंटीमीटर था. आप इसको मेजर करके चेक कर लें कि आपके पास कितने सेंटीमीटर है. ठीक है. ये 3 सेंटीमीटर है. ठीक हो गया. ये 3 सेंटीमीटर है. इसको ओ ए को भी आप मेजर कर लें. ये भी 3 सेंटीमीटर है. इसके ऊपर आप लिख लें MCQ नंबर 9. ठीक है. ये हो गया. इसी तरह ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है आर्क की वो भी 3 सेंटीमीटर है. ये भी आपने देख लिया. ठीक हो गया. अब वो कहता है कि एंगल 60 डिग्री का है और इस पे देखें कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड एंड लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट ओ बी एंड ओ ए, दैट इज़ द लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट, एंड कॉर्ड ऑफ सर्कल ए बी, दैट इज़ द कॉर्ड. इन दोनों का एंगल क्या है? 60 डिग्री है ना. कॉर्ड का भी और रेडियल सेगमेंट का भी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट. 60 डिग्री पे दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे. नेक्स्ट लेट्स सी द लास्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट नंबर 2. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट MCQ नंबर 10. So first of all read out this. MCQ number 10 is the arcs opposite to congruent central angles of a circle are always dash. अब यहाँ पे कीवर्ड देखें, इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल. इनकॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट नहीं, इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल. सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रॉन अ सर्कल हेयर, दैट इज़ द रेडियस, और यहाँ पे मैंने ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है प्रोटेक्टर की हेल्प से, दैट इज़ द एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक हो गया. दैट इज़ द फर्स्ट आर्क. इसको आप नाम दे दें ए एंड बी. दैट इज़ द फर्स्ट आर्क ए बी. क्लियर हो गया. नाउ इसी पे अब मैं कोई और सेगमेंट लेती हूँ, रेडियल सेगमेंट. यहाँ पे मैंने एंगल बनाया जो है, आपने पोर्शन ले लिया कोई सा भी. यहाँ पे हेयर यू हैव टू टेक ए बी एन आर्क एंड दैट विल बी एंगल ऑफ 30 डिग्री. यहाँ पे मैंने ये पोर्शन ले लिया. फॉर एग्जांपल ये आर्क नेम्ड एज सी एंड डी मैंने ज्वाइन कर लिया. ये एंगल तकरीबन हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक हो गया. अब ये देखें, ये ए बी आर्क का पोर्शन है और ये सी डी इनकॉन्ग्रेंट है और ए बी भी, यानी ए बी स्मॉल है पीस ऑफ आर्क और सी डी जो है वो लार्ज पीस ऑफ सर्कमफेरेंस है आर्क सर्कल. ठीक है. तो ये दोनों इनकॉन्ग्रेंट होंगे. यानी MCQ पे क्या होगा? The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always incongruent. ठीक हो गया. I hope you have understand the
MCQs विद कॉन्सेप्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई है और इससे मैं जो है हौसला अफजाई भी हुई है, इसलिए मैं मज़ीद वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही हूँ। और आप कमेंट्स देते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई लाइक इट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस MCQs विद कॉन्सेप्ट। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियोज़, ताकि मैं आपके लिए जो है वो और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के आपको अपलोड करती रहूँ। सो अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।